Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we talk about the PHP, but first we need to understand few things. Okay, so we were talking that we have a front end, okay, and we have a back end. Now in front end, we actually draw the structure. Okay, you have a website to design. You draw a full structure, right? You draw a structure of the website, and for that you need to have an HTML. Now HTML will give you kind of an ugly website. So to make it beautiful, and you put up the style CSS, but it will be static. Up to this point it will be static only. It will not be doing anything. It will be soulless, okay, lifeless website. And you want to put the life on it, then you use the. So up to this point we have done things, but whole of this story starts on a front end only, not on a back end, not on a. Now if we have the sites like, for example, shopping cart or e-commerce website, where you are selling, you are buying, where the things are that you record the customer details, you record the product details, you may have transaction details, okay? Then there are a lot of things to do. That means you have to store something on a database, okay? So you have something on a database. So that means you need to have some software which will create a database for you. You need to have a database software, right? There could be a lot of things like we have the MongoDB, which is the SQL-less database. We can have the SQL Server, okay? We have the MySQL. We could have the SQLite, and there are many more. There are tons of databases. So any database will do. But for PHP, we have usually the MySQL. Okay, we talk about the MySQL. But what is it? It's creating the database here. The language we use to talk with the database is SQL. Okay, so query language. It's a query language. We query the database, it gives something to us. We tell database, give me this record from this table, from what the discount is 60%. So all of those things come to us. But this whole processing which is to be done by a server, is to be done by whom? So that means on the local machine we had a web browser, where web browser was giving us the environment to actually render HTML and CSS and JavaScript. So we have the CSS, HTML, JavaScript. These are all rendered by the web browser. So we have all the rendering engines like HTML for CSS, for JavaScript in the web browser itself. So web browser is the environment, giving us the environment to run that code, front-end code. But now, when you have the processing to be done on a back end, that means you need to have firstly server software. You need some server. Okay? The server itself is a different software. We have operating systems like server operating systems. Okay? Like for Windows Server, we have, which is a server. For example, you have a server inside. Okay, it's just another big machine. But what makes it server is a server software. We load. If I load my server software on this, an operating system server, this becomes a server. Now with this, I can attach many computers. I can give privileges and all to them. For example, your SMS is blocked, your internet will be blocked, some sites will be blocked. You can't put up the pen drive in the computer which you connect to this. But who will make it? It's actually the. Now obviously this computer has to be very robust to hold the load. That's the server hardwares are very robust, but they are just a hardware. But what makes it server is the operating system. Same story is here. So we need to have a server software, and in our case we have, for example, the Apache. The Apache is what? It's a server software. It's a server software which works on a server. So we need to have Apache loaded on a server. We need to have an SQL, MySQL loaded, which can create a database in some hard drive. Okay, attach it with the server. Inside that hard drive, HDD, there will be the databases you create. And to create that database, we need MySQL or any other guys. For example, today we have MongoDB, which is not working on SQL.
We have no, that's called no SQL database like MongoDB. Okay, we may talk that later, but right now we have the MySQL, for example, and the MySQL will help me to create the database on the HDD of a server. But firstly, the server should have some server software on it. That is our Apache. That's our, you understand? And with that Apache server, you need to have some kind of a language which will do all that processing. आप बता रहे हो मेरे पास कस्टमर्स कितने हैं, किसने क्या किया, किसके पास कितना डिस्काउंट है, प्रोडक्ट के क्या क्या चीजें हैं, वो तो सर्वर पे ही लोड होगा ना सारा। उसके लिए तो आपको कोई लैंग्वेज चाहिए ना जिसमें कोडिंग करोगे आप वो चीज, ठीक है। सो उसके लिए आप एक लैंग्वेज भी चूज करोगे, जैसे आपका जावा है, डॉट नेट है, जो भी आप इस्तेमाल करोगे, सी हैश आप करोगे। इन आवर केस वी विल डू द PHP राइट नाउ, डू व्हाट, ठीक है। अगर आप ओनली JS के ऊपर काम करना चाहते हो, ओके, वी हैव द React JS, okay, we got what's called the Node.js, for example, in the beginning, Node.js. The Node.js is the JavaScript being run on the server, okay, because on the server side, if you want to run the JavaScript, you use the JavaScript, because JavaScript is a language itself now. We can use anything in the JavaScript, okay, we don't need any special language, we can use the JavaScript itself. But उसको एनवायरनमेंट चाहिए ना सर्वर पे रन करने के लिए। यहाँ पे आपके पास रेंडरिंग इंजन है ब्राउजर को, सर्वर के पास भी चाहिए ना। तो C++ में हमने एक सर्वर खड़ा करके दिया, सर्वर के अंदर एनवायरनमेंट खड़ा करके दिया है जो जावास्क्रिप्ट को रन करके देगा, जिसे हम बोलते हैं Node.js, ठीक है ना, बात सुना रहे हैं। तो लेकिन फिलहाल हमें PHP करना है, तो हमारे पास PHP हम इंस्टॉल करेंगे, यानी कि PHP जिस तरह अगर आपको जावा या C लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है तो आपको C इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। इसी तरीके से हमको उस लैंग्वेज का इंटरप्रेटर या कंपाइलर लोड करना पड़ेगा कहां पे, सर्वर पे। सो वी इन आवर केस विल लोड PHP ऑन द सर्वर, ओके। और जो हम कोडिंग अगर हमारे वेब ब्राउजर मेरे पास होगा यहाँ पे, आई मीन वेबसाइट जो हम बनाएंगे यहाँ पे, उस वेबसाइट में मेरे पास HTML होगा, CSS होगा, उसमें PHP भी हो सकता है, उसमें हम PHP भी लिखेंगे। लेकिन PHP ब्राउजर के लिए नहीं है, ब्राउजर नहीं, ब्राउजर हैंड्स खड़ा कर देगा जब PHP देखेगा। वो किसको देगा ये, वो ये सर्वर को देगा। सर्वर PHP इंटरप्रेटर या कंपाइलर को, जो भी वहां पे होगा, जो भी लैंग्वेज जिस हिसाब से आपकी होगी, उसका इंटरप्रेटर या कंपाइलर काम करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। बस स्टोरी समझ आती है। तो यानी कि कुल मिला के आपको एक तो डेटाबेस चाहिए, क्योंकि वरना तो फायदा ही नहीं है सर्वर साइड का अगर डेटाबेस नहीं है, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जब आप करोगे उसमें तो डेटाबेस का होना जरूरी है, because you now want to store something, you now want to process that later on, so that means कि हमारे पास सर्वर डेटाबेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमने चूज किया कौन, MySQL, that means you have to load MySQL। पहले सर्वर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें हमने कहा क्या मैंने लोड किया, अपाची सर्वर हम लोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें MySQL भी लोड करेंगे। इट इज एक्चुअली व्हिच हेल्प्स अस टू क्रिएट द डेटाबेस। जैसे आप ओरेकल लोड करते हो ना, तो ओरेकल से क्या हो जाता है, यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस। तो हम लोग डेटाबेस क्रिएट करना, कुछ तो चाहिए ना, ओके। एक्सेस होता था हमारे पास, पहले होता था, या माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, या आप ओरेकल आ गया फिर, या आपने एसक्यूएल सर्वर पे कोई एसक्यूएलाइट लगा दिया आपने, जो मोबाइल के लिए अक्सर करते थे इस्तेमाल एसक्यूएलाइट, या MySQL आपके पास है, तो आपको कोई ना कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपको क्रिएट करके देगा डेटाबेस, व्हिच विल हेल्प अस टू क्रिएट अ यूजिंग SQL। we will query, we will create, like we say create table, student and all that। so वो किसको बोलेंगे हम, वो विंडोज को तो नहीं बोल सकते ना, उसके लिए उसका एक अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर मेरे पास है कौन, MySQL हमारे केस में इस वक्त, ठीक है। तो ये लोड करना हमें अपाची करना है सर्वर के लिए, जो सर्वर को सॉफ्टवेयर होगा जो सर्वर पे इंटरेक्ट, जो सर्वर पे काम करेगा, दैट इज द मेन सॉफ्टवेयर विल बी द सर्वर सॉफ्टवेयर, दैट इज द अपाची इन आवर केस। एंड आई नीड टू हैव अ बैक एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बैक एंड, ये तो फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही जावास्क्रिप्ट। अब मेरे को बैक, मैं कह रहा हूँ हाँ जावास्क्रिप्ट वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर Node.js के ऊपर काम करेंगे, ठीक है ना, मैंने वो कहा आपसे।
लेकिन अगर हम PHP करेंगे तो वी हैव अ बैकएंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ PHP। तो ये सारी चीजें मुझे लोड करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, सर्वर पे। किस पे? अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ओपन सोर्स XAMPP होता है, ओके। तो XAMPP में ये सारी चीजें होती हैं, उसमें MySQL भी है, अपाची सर्वर भी है, ठीक है, PHP भी है, AMP उसके बाद इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, ओके। इसमें टॉम कैट भी है, फाइलजिला भी है, एंड मेनी मोर। आई डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, मुझे वो चीजें नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास जो चीजें हैं जरूरत, अगर हम XAMPP नहीं करेंगे इस्तेमाल तो अलग अलग ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जब हम XAMPP को इस्तेमाल करेंगे, ये सारा इंटीग्रेट करके मुझे इंस्टॉल करके देगा सारा, and it will make my this machine as a Apache server machine. So that means मेरा फ्रंट एंड भी यही ब्राउजर और मेरा बैक एंड भी यही, बस में आती है। लेकिन जब आप कल फिर ये करोगे, वहां पे एक बाज़ाब्ता सर्वर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि अलग से सर्वर होगा। फिर यूजर्स जो आपकी साइट चलाएंगे, उनको उनको अपना ब्राउजर होगा, उसमें वो चलाएंगे, ठीक है। बैक एंड में फिर आप एक सर्वर होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास जब XAMPP हम करेंगे, ये हमें सारा खड़ा करके देगा। सो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू राइट द गूगल XAMPP। हमारे पास लैम्प भी है, मैम भी है, कुल मिला के तीनों यही काम करते हैं, ठीक है। अब XAMPP एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, XAMPP आपका मैक में भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा और विंडोज में भी चलेगा, ओके। आपका वैम्प सिर्फ विंडोज में चलेगा, ठीक है ना। तो ये लैम्प आप इस्तेमाल करो या वैम्प इस्तेमाल करो या XAMPP इस्तेमाल करो, तीनों में से कोई भी चलेगा। लेकिन कुल में व्हाट इज इट गोना डू, it's gonna create us the Apache server. It's installing MySQL as for the database and PHP for the backend scripting. Getting clearly? ठीक है जी, समझ आ रहा है? ओके। अब जब हमारा XAMPP होगा तो उसका एक रूट फोल्डर होना चाहिए ना। जब हम इंस्टॉल करेंगे XAMPP, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, यस, ऐसे XAMPP। देखिए अगर मैं इसको पहले खोलूंगा यहाँ पे, I open the XAMPP. Here you could see this is Apache server, this is MySQL, this is FileZilla, there is Mercury, there is Tomcat. I don't worry about these. I worry about these two only. मेरे पास एक तो Apache server चाहिए और MySQL चाहिए। PHP तो है ही है इसमें, इसने इंस्टॉल किया हुआ है PHP ऑलरेडी, ठीक है। अब MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा और मेरा जो Apache है इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। आई कैन से स्टार्ट। लेकिन जब आप फिर से कल आओगे तो ये ऑफ होगा, फिर से ये काम करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हो, अब रोज रोज हम ये ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा XAMPP है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके सर्विस एज ए सर्विस करेंगे। यानी कि आप देखें यहाँ पे, जब मैंने कहा XAMPP, ठीक है, अगर मैं इसको खोलूंगा सीधे, यहाँ पे ये एज ए सर्विस नहीं हो रहा है क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमने नहीं खोला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम XAMPP करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जब रन एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, नाउ वी कैन स्टार्ट देम एज ए सर्विस। फिर हमें रोज हर रोज ये ऑन करने की जरूरत, यहाँ अपाची को ऑन करेंगे। आई से यस एज अ सर्विस, ओपन एज अ सर्विस, ओपन MySQL एज अ सर्विस। नाउ आई स्टार्ट दिस एंड आई स्टार्ट MySQL, ओके, ठीक है ना। अब आप जब स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, अब आपको इसको बार बार ओपन करने की जरूरत, नाउ फॉरगेट अबाउट दिस, आफ्टर दिस फॉरगेट अबाउट दिस। अब कल आ जाओगे, ये खुद स्टार्ट होगा। अब वी डोंट हैव टू स्टॉप बिकॉज़ इट स्टार्टेड नाउ एज अ सर्विस। सो विंडोज जो ही ओपन होगा, ये खुद MySQL और अपाची को स्टार्ट करेगा, क्योंकि बिगिनिंग के लिए वही करना बेहतर है। जब हम बार बार इसको कहाँ ओपन करेंगे, यू अंडरस्टैंड। अब अपाची भी खड़ा हो गया, MySQL भी खड़ा हो गया, PHP भी खड़ा हो गया, तीनों चीजें खड़ा हो गया। जो डिफॉल्ट फोल्डर है जहां पे आपने इसको लोड किया है, ये रूट फोल्डर है वेब सर्वर का। जिसे सी में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास XAMPP होगा, ठीक है। इस XAMPP में htdocs हमारे पास फोल्डर है, ओके, ये वाला रूट फोल्डर। ये कौन है,
एंड वी कॉल इट एज अ लोकल होस्ट। ये जो सारी, ये जो इतना है C XAMPP htdocs, you don't write this thing, we say local host, you say what it means, this thing जहां पर भी इंस्टॉल है उसमें जो htdocs है वो फोल्डर, इट इज इन actually called as what local। जब हम वेब ब्राउजर पे चलाएंगे we write local host there because it's on the this machine, okay, which has a local address of 127.0.0.1। वो आपको आईपी एड्रेसेस पता होंगे, नेटवर्किंग का पढ़ते हैं, ठीक है, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज लोकल होस्ट, इट्स कॉल्ड व्हाट, बात समझ आ रही है? ओके, नाउ आई वांट टू रन अ कोड, आई वांट टू रन व्हाट, उसके लिए दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाऊंगा एंड आई से हियर फोल्डर का नाम मैं रखूंगा PHP, एक है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे रखूंगा नाम माई PHP। हाँ, ये माई PHP मेरा फोल्डर है। अब इसी में अपना PHP का कोड हम लिखेंगे, जो भी हम करेंगे। अब ये माई PHP किधर है, लोकल होस्ट स्लैश माई PHP, और आई कुड से सी में XAMPP है, XAMPP में htdocs है, htdocs में कौन है, my PHP, but this whole thing is called as localhost, so I could say localhost slash, जब आप ब्राउजर में लिखोगे localhost, it will open up this folder, actually it will run this index.php, you know what, क्योंकि जब भी आप फोल्डर का नाम खोलते हो ना, उसके अंदर जो इंडेक्स होता है वो ओपन होती है ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्रोम खुलाऊंगा अपना गूगल क्रोम, आज इंटरनेट बैठा क्यों है, let's go here, तो टैब खुलाई तो मैंने क्यों किया, if I say local host, okay, now it's automatically doing something, I don't know what happened, local host, ये ओपन ऑटोमेटिकली ओपन करेगा ये डैशबोर्ड XAMPP का, इस अपाची प्लस MariaDB PHP Perl and all those things, ये खुल गया। ये है कहां से आ गया है, because it was written in where, this index.php, if I open it with the open with code G, व्हाट्स हैपनिंग, सी ये ओपन कर रहा है इंडेक्स हमेशा, नॉट डैशबोर्ड। अब इंडेक्स से फिर आप कहां जाना चाहते हो वो इंडेक्स बताएगा, ठीक है, नॉट इट विल नॉट ओपन द डैशबोर्ड, इट ओपन द इंडेक्स। जब भी आप वेबसाइट पे बनाओगे वहां पे पहला जो आप लिखोगे वो होता है index.html और व्हाटएवर दैट इज, अंडरस्टैंड। तो जब वो खुलेगा वो क्या खुलेगा, इंडेक्स, फिर इंडेक्स से आप रिडायरेक्ट करते हो आपको कहां जाना है। जैसे यहाँ पे PHP का कोड लगा है, ठीक है, उसमें बता रहा है बहुत सारी चीजें, और उसके बाद हेडर मींस आप जाना कहां चाहते हैं, जैसे href करते हैं ना, इसमें href हम करते हैं HTML में, यहाँ पे हेडर से करते हैं, आप जा रहे हो डैशबोर्ड पे, डॉट डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, हाँ, ये इसका ये है, ठीक है। So the dot here is doesn't mean the current folder, this dot means concatenation, remember in PHP we don't have plus for concatenation, we have dot, okay। So ये डैशबोर्ड खोल रहा है, उसके बाद अगर खुलेगा, ठीक है ना, हम इसको एडिट करके अपना index.php को एडिट करके अपना रख सकते हैं, but we don't want to do that, we just want to do what we want to, पहले मैं इसको क्लोज ही करूंगा, नहीं यार, I just want to close this। Now what I do here is in the htdocs I have my PHP, I open this folder in my what, Visual Studio, open with VS Code, समझ आ रहा है, okay, I'm opening it now and here I will create a new file। बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम जो हम काम करते हैं ना, हम HTML का ही होता है कोड, तो उसके बाद उसमें हम एम्बेड करते हैं PHP, या हमारा PHP अलग भी हो सकता है, पूरी PHP की फाइल ही हो सकती है अलग, या हम PHP को एम्बेड करेंगे किसमें, HTML, वहां पे PHP का टैग लगाएंगे, या स्क्रिप्ट लैंग्वेज इसको PHP लिख के स्क्रिप्ट हम करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, जो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू PHP, ठीक है।
तो उसमें भी लिख सकते हैं, या सीधे PHP का टैग खोलेंगे कहीं पर क्लोज करेंगे। फिलहाल मैं इस वक्त HTML नहीं, फिलहाल मैं PHP का ही बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? I will call it index.php. I will call it what? Index dot, ये है कहां पर मुझे माई PHP। अब ये वहां पे नहीं है, लोकल होस्ट पे नहीं है, लोकल होस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। लोकल होस्ट के अंदर कहां जाना पड़ेगा? माई PHP में जाना पड़ेगा, उधर ये है। ठीक है, यहां पर मैं HTML भी लगा सकता हूं, आपकी मर्जी है। अगर HTML लगाना चाहते हो HTML लगा लो। ठीक है, जो भी HTML, जैसे मेरे h1 टैग यहाँ पर है, I got h1 tag and I say here learning PHP, right? PHP, what is it? ये आपकी आज ये है, okay, तो आपको पहले ही पता है, तो आप क्या करेंगे? Now I will have what? I will have the PHP tag. So for the PHP tag, what? I got the question mark, then PHP. Then when you want to close it, you put a question mark and close it like this. Simple as it is. Okay? Whenever you want to use PHP code inside your HTML, okay, you will use the PHP tag. That is angle bracket start question mark, फिर question mark and angle bracket close, और यहाँ पे PHP। ठीक है ना? इसके बगैर भी बहुत सारे 2-3 तरीके हैं जिसे हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये करूंगा, and I will have the echo. The echo command will print me something. Echo also has a print. Print और echo सेम ही होता है तकरीबन, print लेकिन रिटर्न करता है, echo रिटर्न नहीं करता। और echo इसलिए फास्ट है तो ज्यादा echo इस्तेमाल करते हैं, print को रिटर्न भी करेगा। अब वो किसी एक्सप्रेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, because it is returning things. echo वहां नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो बातें बताऊंगा मैं। I say assalamu, that means peace and blessings upon you. Many people get afraid. Non-Muslim guys get afraid of assalamu alaikum. They say this is nothing, this means peace and blessing upon you. When I say in English peace and blessing upon you, they become happy. When I say assalamu alaikum, they think, oh, it's a religious kind of thing. Why are you putting religion in everything? Many times, you know, people comment on my videos, why you put assalamu alaikum, religious things on your videos? This is not religious things, this is the blessing I'm giving you. Anyways, समझ आई वहां? Now we want to run it. Control S. If I go live, if I go what? Now it will download it as a folder, not run it, because browser की तो ये बात ही नहीं है, ब्राउजर तो कर नहीं सकता है। index.php है ना, इसको क्लिक करूंगा ये डाउनलोड करेगा। ब्राउजर PHP को रन नहीं कर सकता, जो ब्राउजर है वो PHP को रन, इसको किसको देना पड़ेगा? सर्वर को, सर्वर को। सो इसलिए इसको यहां पे बोलना पड़ेगा, भाई साहब लोकल होस्ट वेब सर्वर के पास जाओ, और वहां पे आपको कौन है, माई PHP शायद ऐसे था, उधर आपका है इंडेक्स डॉट, अगर वो लिखेंगे भी नहीं तब भी वो पहले इंडेक्स रन ही करेगा ना। ठीक है, now if I give it a go, now it is updating both learning PHP as well as learning PHP was what, HTML, अस्सलाम वालेकुम was। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट लिखता हूं, प्रिंट printing blessings, okay, and terminate with control S. Now it's not giving it here, okay, I have to refresh, but if you want कि नसा ये कुछ लाइन सर्वर पर चलो, ठीक है, तो फिर आपको इसका बाई, जो लाइव सर्वर का बाई है ना, वो इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ब्राउजर में, लाइव सर्वर का बाई, लाइव सर्वर का, ठीक है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा किसमें, ब्राउजर में। मैंने किया हुआ शायद, दैट्स कॉल्ड एज लाइव सर्वर वेब एक्सटेंशन। क्या लिखेंगे आप, लाइव सर्वर, या ब्राउजर में लिखेंगे लाइव सर्वर वेब एक्सटेंशन, और जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो हमें काम करना पड़ेगा वो ये काम करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, जो लाइव सर्वर वेब एक्सटेंशन है, यहाँ पे इसका ये आता है, ये आइकॉन, उसके बाद इसको क्लिक करें, जब इंस्टॉल करोगे ना आपको समझ आ रहा है, एक्सटेंशन आपका लाइव सर्वर वेब एक्सटेंशन, ये आपको ब्राउजर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें वहां पे दो चीजें बतानी पड़ेंगी, पहले तो ऑन करना पड़ेगा, दूसरी बात आपको करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा जो डिफॉल्ट पोर्ट इसका है। आप देखो यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट पोर्ट 5500 है ना, ये ना 55 यहाँ पे पोर्ट जो लाइव सर्वर का है,
लाइसेंस वो पोर्ट बताना पड़ेगा कि भाई साहब 127.0.0.1 मींस द लोकल होस्ट, वहां पे जो आपका डिफॉल्ट पोर्ट है वो कौन है 5500, और यहां पे बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा फोल्डर था जिसमें आपने ये माई पीएचपी कंट्रोल एस, मैं कंट्रोल एस क्यों बता दिया, इट्स बी सेव्ड नॉट कंट्रोल एस, वन सेकंड। सो यहां पे बताना पड़ेगा क्या, ठीक है बराबर है माई पीएचपी, अप्लाई देना अप्लाई, ठीक है जी। Now if I go here and I say echo going live, going, ये बात क्यों नहीं रहा मैं, going live, now save it, control S to save it, it's still not working, क्या है इसमें टर्मिनेटर भी है वो प्रॉब्लम है, लेकिन HTTP लोकल होस्ट माई PHP ने ठीक लिखा, पोर्ट भी ठीक है, ये परफेक्ट है जी, वो ना लाइव सर्वर किया है ना हमने, ये है ना, नहीं नहीं वो तो था ना ऑलरेडी, ओके कोई बात नहीं, आई से हियर व्हाट लोकल होस्ट, उसके बाद लोकल होस्ट में कौन है माई PHP slash okay, now if I am saying if I go here I copy this out, control S, now you guys na hold you, it's not coming, there is some issue, let us see, ये लाइव सर्वर चला ही नहीं ना, देखो लाइव सर्वर का मतलब ये हमने वहां पे एक्सटेंशन किया, उसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कंट्रोल एस किया ना, रिफ्रेश करो, you understand, but there is some issue, let us see that, नहीं एक ही बार आया ना, दूसरी बार तो फिर भी नहीं आया, क्योंकि इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तब आएगा, वो नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो ना हो, इसलिए तो हमने एक्सटेंशन लगाया which is somehow not working, ओनली फोल्डर बताना पड़ेगा ना, मुझे लगता है एम हमने कब लिखा है यहाँ पे, वो स्मॉल था, यानी कि अब हम क्या करेंगे काम, एक और कॉपी मारेंगे वो लाइव, कंट्रोल एस करेंगे, आया वहां से क्या, फिर भी नहीं आया, ये रिफ्रेश होके होता आता है ना, आप बताओ कब कौन सा एरर है इसको, माई PHP ऐसे ही है, फोल्डर का नाम यही है, कहां पर है वो, उतेश हमारा कैपिटल सो रहे, MYP कैपिटल HP माई PHP, हाँ एक बार से देखेंगे, लोकल होस्ट ना ना http:// लोकल होस्ट और दोस्त मेरा स्लैश माई PHP and slash, okay, and apply, it should apply जी, ये ठीक है, ये वाला 127.0.0.1:5500, ये ठीक है परफेक्ट है, http:// या तो लिखने में कुछ गड़बड़ हो रही है, कंट्रोल एस, हाँ हाँ चल गया, इसमें लोकल होस्ट में गड़बड़ लिखा था कहीं पे, लोकल होस्ट जो लिखा था ना वो शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, वो मैंने, देखो यहाँ पे करो एक और कंट्रोल एस, right, anyways that's all for today, we will carry on with this PHP